We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, welcome. In this video I am going to discuss and modify one application which was discussed and demonstrated you earlier in my video. If you remember, I have discussed CRUD application in Android, in which we have performed CRUD operations on underlying SQLite database. Okay. So I had developed that application in 4 parts, if you remember, and I had shared 4 videos of that application to you. Now in this video we are going to make a few modifications to that application, but let me show you the application which we have already developed in my earlier video. So if you have not watched that video of CRUD application part 1, part 2, part 3 and part 4, then I will assist you to please watch those videos first, and then you could understood this video. So let's start. Let me show the output of the application. See, when our application executes, there is a custom list view which has a record which show all the records from a table named players. Okay, it shows player name, player team, then players run. Okay, and actually there are 5 columns in a table: player ID, player name, player team, player innings and player runs, and we are displaying 1, 2 and 3 columns from that table. Okay, and then we have performed various operations in it, like when a client long press this item, we have represented 3 context menu items: edit player, delete player and view player. For example, if a client press here, long press, and click on view player, then the record will be shown on a dialog box. Okay, then if client presses long presses and selects edit, then a dialog box will appear with the details, and he can easily update the things by just modifying the data, okay, and submitting it. Okay, so it will be modified, you can see here. Okay, and if client selects delete, then we will prompt him or her and we will ask whether he is sure, yes or no. If yes, then the record will be permanently deleted from the table, and it will also be reflected in the list. Okay, and add operation, we have put add operation in options menu. If client selects option menu, then we will prompt him to add a new record via dialog box. So it is a custom dialog box in which we are asking for the data. Okay, for example, here I will enter the data: player name, player team, innings played and score, total runs. Okay, now the record will be added and it will be viewed at last of the list. If you can see, the record is shown at last. Okay, so in this way we have performed that application, and for that we have a database helper in which we have defined columns of the table name, then its constructor, on create, on upgrade, add player, get players, delete player, update player, get record. Okay, these are the operations, and it is our IPL player activity. Now यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, मतलब कि ऐड और एडिट ऑपरेशन, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो, मतलब कि क्रूड एप्लीकेशन पार्ट 4 में मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे डायलॉग बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं, कस्टमाइज़ कर रहे हैं डायलॉग बॉक्स को, और उसके द्वारा इनपुट ले रहे हैं। मतलब कि जब भी क्लाइंट ऐड पे क्लिक करता है या एडिट पे क्लिक करता है,
तो हम उसको एक कस्टम डायलॉग बॉक्स शो कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे कंटेक्स्ट मेनू में, ये जो कंटेक्स्ट मेनू है हमारा, उसमें हमने एक मेथड कॉल की है ऐड एडिट प्लेयर। चाहे वो एडिट पे सिलेक्ट करे या ऐड पे सिलेक्ट करें। ओके, ऐड एडिट प्लेयर। और यहाँ पे हमें ये रिक्वेरी भी करना पड़ेगा। ओके, वो हमने वहाँ पे किया हुआ इसलिए। ओके, और इस मेथड में ऐड एडिट प्लेयर में हमने क्या किया, जो आर्ग्यूमेंट पास हुई आइदर वो ऐड है या एडिट है, हमने यहाँ पे एक एलर्ट डायलॉग बिल्डर बनाया है और फिर उसमें ये एक व्यू को हमने इन्फ्लेट करवाया है। कौन से व्यू को? प्लेयर व्यू को। ये प्लेयर व्यू जो है उसको हमने उसमें डायलॉग बॉक्स में इन्फ्लेट करवाया है, देख रहे हो आप। और इसमें अगर एडिट पे क्लिक करता है क्लाइंट तो यहाँ पे डेटा फिल हुआ आएगा, और अगर ऐड पे क्लिक करेगा तो ये सभी एडिट बॉक्स एम्प्टी आएंगे इनिशियली। ओके, तो देखो हमने यहाँ पे इन्फ्लेट करवाया है प्लेयर को XML में, XML फाइल को, फिर रिट्रीव किए है एडिट टेक्स्ट, और अगर वो उसने एडिट पे क्लिक किया है तो उसमें वैल्यू भी सेट कर दी है। और फिर दो बटन्स जो है ऑन, सबमिट और कैंसल। सबमिट में पहले चेक किया कि क्या उसने किसी भी फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ा। फिर हम आगे जाके टेक्स्ट बॉक्स में जो उसने वैल्यूज़ फिल की है उसको कैप्चर कर रहे हैं। और प्लेयर मॉडल जो हमने बनाया था, मॉडल क्लास, उसको हम उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फिर अगर ऐड सिलेक्ट किया है तो हम डेटाबेस हेल्पर की ऐड प्लेयर मेथड कॉल करेंगे, जो हमने यहाँ पे डिफाइन की है, ऐड प्लेयर। ओके, ये वाली। अदरवाइज हम कॉल करेंगे अपडेट प्लेयर, ठीक है। और फिर रिक्वेरी और डायलॉग बॉक्स को डिसमिस कर रहे हैं। अब देखो, मैंने आपको तब ही बताया था लास्ट वीडियो में कि यही चीज़ हम जो डायलॉग बॉक्स से कर रहे हैं उसको हम दूसरी एक्टिविटी बना के भी कर सकते हैं। मतलब कि जब क्लाइंट ऐड प्लेयर पे सिलेक्ट करे या एडिट प्लेयर पे सिलेक्ट करे तो यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है उसके बजाय एक नई एक्टिविटी हम बनाते हैं, वो ओपन हो, और उसमें जाके क्लाइंट ऐड और एडिट का जो है वो करे काम, ठीक है। तो उसके लिए उसको मतलब कि क्लाइंट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, चेंजेस हमें करने हैं। ओके, सो चलो ये मैं आपको वो बताता हूँ कि किस तरह से हम वो कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी जो एप्लीकेशन है उसमें मैं एक नई एक्टिविटी ऐड करता हूँ, एम्प्टी एक्टिविटी, और उसको मैं नाम दूंगा फॉर प्लेयर। अब इसका मुझे लेआउट नहीं बनाना है, इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि मेरे पास इसमें जो लेआउट मुझे रखना है वो ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, प्लेयर, ठीक है ना। ये प्लेयर मेरे पास अवेलेबल है, तो उसी प्लेयर लेआउट को मैं इस पे यूज़ करूँगा, क्योंकि ये एक्टिविटी जो मैं बना रहा हूँ वो प्लेयर को ऐड और एडिट करने के लिए, अपडेट करने के लिए बना रहा हूँ। तो इस लेआउट को मैं इसके लिए सेपरेटली नहीं बनाऊँगा, मेरे पास जो लेआउट है उसी को मैं यहाँ पे शो इन्फ्लेट करवाऊँगा। देखो ये अपनी एक्टिविटी बन गई। अब हम सबसे पहले इसमें सेट कंटेंट व्यू कर लेते हैं। r.layout.player, ठीक है। अभी ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। चलिए बिल्ड हो गया, फिर भी यहाँ पे हमको एरर बता रहा है। क्या एरर है इसकी वो देखते हैं हम। तकलीफ क्या है, उसको तकलीफ।
अच्छा यहाँ पे n मेरे से गलती से टाइप हो गया था। ओके, तो ये हमारी एक्टिविटी है। अब हमें क्या करना है कि वहाँ पे IPL प्लेयर्स में जो हमारी पिछली एक्टिविटी है उसमें जो हमने कोड लिखा था एड एडिट में मेथड में, वो सारा कोड वहाँ से निकाल के हमें इस एक्टिविटी में रखना है और डायलॉग बॉक्स यूज़ नहीं करना है। ठीक है, देखो ये अपना एड एडिट। ओके, मैंने आपको पहले भी कहा था, वापस कह रहा हूँ कि ये वीडियो देखने से पहले आप वो मेरे 4 वीडियो अगर देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, बिकॉज इट इज़ द 5th पार्ट ऑफ दैट क्रूड एप्लीकेशन। ओके, देखो यहाँ पे मैं पूरा जो मेरा कोड है वो यहाँ से कॉपी करके लास्ट तक का जो है मेथड पूरी होने तक का मैं कॉपी करके उसको यहाँ पे 4 प्लेयर में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो IPL प्लेयर्स है हमारा उसको मैं कमेंट दे दूँगा। ठीक है, उसमें ये जो पूरा कोड है हमारा उसको मैं कमेंट दे दूँगा। चलिए अब देखो 4 प्लेयर में चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे सेट व्यू प्लेयर व्यू, ये डायलॉग बॉक्स हमें नहीं चाहिए, निकाल दो। ये बिल्डर का सेट टाइटल, उसे हम कमेंट करते हैं अभी। फिर यहाँ पे टेक्स्ट व्यू के नाम तो यहीं रहेंगे क्योंकि प्लेयर्स को ही हमने इन्फ्लेट करवाया है यहाँ पे, तो नाम जो है वो तो वहीं रहेंगे। केवल और केवल ये प्लेयर व्यू को निकाल देना है क्योंकि अब हम डायरेक्टली लेआउट को इन्फ्लेट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है, ओके, फिर DB हेल्पर तो वो तो हमें यहाँ भी डिफाइन करना पड़ेगा क्लास के अंदर। डेटाबेस हेल्पर ठीक है, और हाँ ये ऑप्शन पोजीशन, ये दोनों क्या है पता है? ऑप्शन एक्चुअली जब ऐड या एडिट पे क्लिक करता है क्लाइंट तो वहाँ से मेथड को कॉल करते वक्त हम पास कर रहे हैं ऐड या तो एडिट। ओके, तो ये हमें वहाँ पे भी चाहिए। ओके ओके, फिर आगे पोजीशन तो वो भी चाहिए। ये प्लेयर व्यू को निकाल देना है। ठीक है, ये शो मैसेज तो मतलब कि मैसेज तो शो करना है हमें, तो शो मैसेज नाम की जो मेथड है हमारी उसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करते हैं क्योंकि मैसेज तो डिस्प्ले करना है जब ऐड हो या एडिट हो तब। ओके, चलो ऑप्शन और पोजीशन का कर लेंगे हम। कर्सर डॉट रिक्वेरी भी करना पड़ेगा। ये डायलॉग डॉट डिसमिस मतलब कि डायलॉग को क्लोज करना, तो एक्टिविटी को क्लोज करने के लिए फिनिश ऑप्शन। अब ये कर्सर डॉट रिक्वेरी है वो तो करना पड़ेगा, तो कर्सर एक्चुअली हमें रिफ्लेक्ट कहाँ पे करना है कर्सर को? IPL प्लेयर्स में। तो कर्सर के जो हमारा पहले इंस्टेंस वेरिएबल था उसको अब स्टैटिक बना दिया। अब स्टैटिक बना दिया है तो कर्सर को यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं IPL प्लेयर्स डॉट कर्सर। मतलब ये 4 प्लेयर नाम का जो हमारा क्लास है उसमें से ये कर्सर को हम रिक्वेरी कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो चेंज करेंगे वो डायरेक्ट लिस्ट में रिफ्लेक्ट होंगे, अदरवाइज बंद करके वापस चालू करना पड़ेगा। देखिए इसको अभी हम कमेंट रखते हैं। ठीक है, ये अगेन प्लेयर व्यू आ गया, इसको निकाल दो। ऑप्शन पोजीशन ये बिल्डर की भी आवश्यकता नहीं, इसको मैं अभी कमेंट देता हूँ। ये डायलॉग को डिसमिस मतलब कि फिनिश एक्टिविटी को करना। सेट कैंसलेबल और ये दोनों कैंसल। ओके, तो ज़्यादातर केस में जो एरर्स अभी बता रहा है मतलब कि रेड कलर में, वो ऑप्शन और पोजीशन के लिए। अब सोचो कि ये जो हमने बनाया 4 प्लेयर उसको हम IPL प्लेयर से हम इन्फ्लेट करवाएंगे, कब और कहाँ? तो देखो ये हमने ऐड और एडिट के लिए बनाया है। तो जब ऐड पे क्लिक करता है क्लाइंट तो मेथड कॉल होती है ऐड एडिट प्लेयर, और जब क्लाइंट अपडेट पे क्लिक करता है तब भी मेथड कॉल होती है ऐड एडिट प्लेयर। तो हमारी जो मेथड है ऐड एडिट प्लेयर
उसी में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंटेंट बनाएंगे। इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, और दूसरी आर्ग्यूमेंट हमारी एक्टिविटी फॉर प्लेयर डॉट क्लास। ठीक है, अब इंटेंट में हम पुट एक्स्ट्रा करेंगे, लेकिन बंडल को पुट करना है तो पहले बंडल बनाएंगे। बंडल एक्स्ट्रास इज इक्वल टू न्यू बंडल। ठीक है, क्योंकि यहाँ से उस एक्टिविटी को स्टार्ट करवाना है और उसको डेटा भी पास करना है, ऑप्शन और पोजीशन। मतलब कि ऐड सिलेक्ट किया है या एडिट सिलेक्ट किया है, और एडिट सिलेक्ट किया है तो पोजीशन भी देनी पड़ेगी कि कौन सी आइटम पे लॉन्ग प्रेस किया है, उस रिकॉर्ड को एडिट करना है, तो वो रिकॉर्ड वहाँ पे शो होना चाहिए, इसके लिए पोजीशन चाहिए हमको। अब एक्स्ट्रास डॉट पुट स्ट्रिंग, ऑप्शन, उसमें ऑप्शन की वैल्यू, और एक्स्ट्रास डॉट पुट लॉन्ग। ये जो पोजीशन है वो लॉन्ग वेरिएबल है। ठीक है, तो क्या पुट करेंगे, लॉन्ग पोजीशन और पोजीशन। ठीक है, और फिर स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, यहाँ से पास किया अभी। तो फॉर प्लेयर में यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, एक लॉन्ग पोजीशन और एक स्ट्रिंग ऑप्शन। ओके, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑन क्रिएट में ही लिख देते हैं इंटेंट इज इक्वल टू, या फिर गेट इंटेंट, जिस इंटेंट के द्वारा ये एक्टिविटी रन हो रही है वो। फिर उसमें से बंडल रिट्रीव करना है, बंडल इज इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रास। पुट लॉन्ग, अभी बंडल को हमने ऐड नहीं किया है, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रास ओके, बंडल को पुट कर दिया, यहाँ पे उस बंडल को निकाला हमने। फिर पोजीशन इक्वल टू, इसका नाम बंडल तो ऑलरेडी, अच्छा ये बंडल ही रखते हैं, बंडल डॉट गेट लॉन्ग पोजीशन, और यहाँ पे ऑप्शन इज इक्वल टू बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग ऑप्शन। ठीक है, देखो आ गया सब कुछ। अब मेरे ख्याल से कहीं पे एरर नहीं है, इतना ही चेंज करना है। अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो अब ये नई एक्टिविटी रन होगी। ठीक है, देखो ये हमारा पूरा लिस्ट आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शंस मेनू में जाके मैं ऐड करता हूँ। ऐड किया, अभी नेम ऐड करता हूँ, प्लेयर मुंबई, इनिंग्स 12, रन्स 200। ठीक है, सबमिट। सबमिट हो गया। देखो अभी सबमिट हो गया, लेकिन वो जो रिकॉर्ड हमने लास्ट में ऐड किया वो अभी आया नहीं। एक्टिविटी को बंद करके
वापस रन करता हूँ। देखो अभी आ गए, तो तभी उसकी असर हो जानी चाहिए जब वो ऐड हो रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक लाइन लिखी थी जिसको मैंने कमेंट दे दिया, ये वाली, ये लाइन रिक्वेरी करना है कर्सर को, तो उसकी असर तुरंत ही हो जाएगी। नेक्स्ट एक्टिविटी में उसकी असर करनी है जो प्रीवियस एक्टिविटी है, इसलिए वो एक्टिविटी का जो कर्सर है उसको यहाँ से एक्सेस करके रिक्वेरी किया हमने। चलिए अब ऐड करते हैं। आ गया ड्रेन लारा। उसी तरह से सपोज इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ, एडिट प्लेयर, मुंबई इंडियंस, ठीक है, और रन उसके कर देता हूँ मैं 1500। देखिए ये आ गया। तो इस तरह से हम दूसरी एक्टिविटी बना के भी ऐड और एडिट का ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। ये पहले क्या होता था कि लिस्ट के ऊपर ही डायलॉग बॉक्स आ जाता था और थोड़ी जगह ऑक्यूपाई करता था, बाकी पीछे का जो लिस्ट है वो हमें दिखाई देता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक नई एक्टिविटी आ रही है, इन्फ्लेट हो रहा है सब कुछ वापस, मतलब कि एक नई एक्टिविटी में। कभी कभी वो थोड़ा उसको देर लगेगा, इन पूरा एक नई एक्टिविटी को लॉन्च करना है इसलिए, ठीक है। और फिर अगर हम चाहें तो ये जो व्यू का कोड है, व्यू का, वो भी हम उस एक्टिविटी में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए डायलॉग बॉक्स ज़्यादा बेहतर है व्यू करने के लिए। देखो ये डायलॉग बॉक्स भी आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हम व्यू प्लेयर में भी हमने व्यू कॉल किया है, ऐड एडिट प्लेयर व्यू, और यहाँ से ऑप्शन पास करते हैं व्यू। हाँ तो देखो उस एक्टिविटी में व्यू का भी कोड है यहाँ पे, व्यू, वो भी व्यू का कोड भी इसी एक्टिविटी में है। देखिए ये सब कुछ फॉल्स कर दिया है उसमें इनेबल, तो केवल वो व्यू कर पाएगा क्लाइंट रिकॉर्ड को, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक अलग एक्टिविटी बनाई तीनों ऑपरेशंस के लिए, व्यू, अपडेट और ऐड। और डिलीट के लिए तो कुछ क्लाइंट से लेना है नहीं, उसने जो लॉन्ग प्रेस किया है उसी आइटम को डिलीट करना है, ठीक है। जैसे कि ये पोलार्ड को डिलीट करना है तो वहाँ पे वो लॉन्ग प्रेस करेगा क्लाइंट और उसमें से वो डिलीट सेलेक्ट करेगा, ओके, तो रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम एक अलग एक्टिविटी लेकर भी ऐड, एडिट और व्यू का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते क्रोड एप्लीकेशन में। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो डायलॉग बॉक्स वाला मैकेनिज्म था वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक अलग से एक्टिविटी को लॉन्च करना, इन्फ्लेट करना, पूरा लेआउट उसका, इट विल टेक सम टाइम एंड इट विल बर्न द प्रोसेसिंग। सो इस हिसाब से उसी थ्रेड पे डायलॉग बॉक्स आ जाए ऊपर, उसी इंटरफेस पे, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ओके, धन्यवाद।